Hi, Dr. Ripin. Hi dear, how are you? Very good. Thank you so much for taking out your valuable time for us. Thank you. So, being an ophthalmologist, eye specialist, हमारी जो eyes हैं, I guess according to me, it is very important part of our body. We look the beautiful world through our eyes, but I guess यहाँ पे लोग people around in India and maybe in the world, they take eye care for granted. मतलब every 6 months we'll go and get our full body checkup, half yearly or after 1 year, but we neglect our eyes. Yes. Why of is that course. so? Yeah, it is actually a fact. I see people have got the full body checkup. They go regularly, but for eyes they're like, अरे नहीं दिख ही तो रहा है ना. हाँ, right. दिख रहा है तो सब ठीक है. Hmm. No, it's not like that. There are two eye. It's a vast field. Mhm. It is not just if you are able to see the crystal clarity, your contrast, your colors, your visual field. There are thousands of things which we Okay. need to look up in eye. राइट सो हमें जैसे हम अपना बॉडी चेकअप करते हैं हम अपनी आईज को भी रेगुलरली चेकअप करवाना चाहिए Of course. So, every 6 months. एवरी 6 मंथ्स Yes. कोई प्रॉब्लम हो या नहीं हो Yes, exactly. Okay. क्योंकि क्या होता है कि स्पेशली बच्चों में आई मीन आई तो जनरली इन ऑल एज ग्रुप्स इट इज सो इम्पोर्टेंट. बच्चों में यू डोंट नो स्कूल गोइंग एज में बच्चों में चश्मे का नंबर है या नहीं अनलेस अंटिल आप एक डॉक्टर को चेक नहीं करवाते. Right, and the kids don't complain about headaches and all. Yes, no, they are very less. They do complain. Okay. But sometimes these factors are hidden. Right. Sometimes by the time the child is 10 years, 11 years, by the time you come for a checkup and हम देखते हैं एक आंख में तो बच्चा अच्छा देख रहा है, दूसरी आंख amblyopia means lazy हो रखी है, Okay. means it has got very less vision and हम उस टाइम पे उसका कुछ ज्यादा कर भी नहीं सकते. अच्छा. So that is why if we catch such diseases in time, the chances of visual recovery and full vision and eye health are good. अच्छा तो हम जितने the earlier the better. Supposedly Yes. उस बच्चे का for example 4 नंबर आ सकता है अगर हम उसका चेकअप नहीं कराया तो उसको टाइमली पकड़ लिया तो उसका नंबर 2 तक रह गया. ऐसा भी हो सकता है कि we can stop the number of the classes. For the glasses number, there are many factors which play a role in the power of glasses. Your nutritional, your visual hygiene, your Okay. screen usage, general development, सब factors इकट्ठे play करते हैं. अगर हम timely check करवाएंगे, we will come to know कि हमारा क्या status है eye का, what can we do further to improve it ताकि number ना बढ़े और अगर है तो उसको स्टेबल कैसे करें. ओके तो हमारा अगर 2 नंबर आ गया है तो हम उसको सस्टेन कर सकते हैं कि वो इंक्रीज नहीं हो. सस्टेन कर सकते हैं और इंडीड जो प्लस नंबर है बच्चों में वो जैसे जैसे आई बॉल बढ़ता है बच्चा बढ़ता है ग्रोथ अच्छा होता है तो प्लस नंबर जाने का भी चांसेस होते हैं. ओके मतलब नंबर आ गया तो वो जा सकता है बच्चों में स्पेशली जिनमें प्लस नंबर बिफोर 18 years of age I guess. बिफोर 12-13 years. So plus number is myopic when we are not able to see the far side मतलब दूर की चीजें नहीं it's near sightedness I guess. Basically we say that in myopia it is near sightedness. But basically myopia and hypermetropia both are refractive errors in which you are not able to focus on the far things very clearly. Right. In myopia the children tend to see very near and just ऐसे करके books को पढ़ते रहते हैं. इन केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया बच्चे बाहर दूर का भी नहीं फोकस कर पाते और नजदीक का भी बहुत अच्छे से फोकस नहीं कर पाते. अच्छा तो दोनों चीजें नहीं फोकस दोनों में अच्छे से फोकस नहीं कर पाते. तो ऐसे केसेस में हमें प्लस नंबर बोलते हैं जिसे हम हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं. वो भी एक रिफ्लेक्टिव एरर है. मायोपिया वो भी एक रिफ्लेक्टिव एरर है और दोनों को अगर हम ट्रीट नहीं करते तो आई बॉल प्रॉपर्ली ग्रो नहीं करती और विजन उसमें धीरे धीरे कम होती जाती है और लेजी आई होके वो परमानेंट विजन डैमेज हो सकता है. एग्जैक्टली. सो ऐसा भी है जैसे न्यूबॉर्न कोई चाइल्ड है पेरेंट्स को दोनों को एक मिनट ब्रेक देख सकते हैं. मैं खुजली हो रही है यार ये मच्छर काट. यश यू कैन स्टॉप. सो कमिंग टू न्यूबॉर्न चिल्ड्रन can the vision of a newborn child be determined? See, we can find that the child has refractive error or not. Refractive error means उसको नंबर है या नहीं है एंड हमें उसे ट्रीट करने की जरूरत होती है कि नहीं है. जब बच्चा बॉर्न होता है उसका कुछ नंबर होता है अराउंड जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है आई बॉल का साइज ग्रो होता है.
जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, नॉर्मल विजन होती है, सिर्फ अपनी मदर तक को देख सकता है न्यू बॉर्न चाइल्ड। जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है, बाय 6 months he can see little farther and by 6 months to 1 year उसका विजन पूरी तरह से डेवलप कर जाता है। विजन मीन्स दूर देखने का। जो स्टीरियोप्सिस है, डेप्थ परसेप्शन है, वो विद टाइम धीरे धीरे बाय 3 years to 5 years आती है। सो जब बच्चा बॉर्न होता है, हम डेफिनेटली चेक कर सकते हैं कि उसमें विजन कैसा है, चश्मे की जरूरत अकॉर्डिंग टू दैट एज है या नहीं है, बाय डायलेटिंग, नॉट बाय आवरसेल्व्स, बाय कंसल्टेशन टू डॉक्टर। डॉक्टर्स आंख में ड्रॉप डालेंगे। अच्छा, न्यूबॉर्न चाइल्ड के अंदर भी हम we put drops only, Yes, then we yes, can yes. okay. देखो, बच्चा तो पढ़ के नहीं बता सकता, so definitely we have to dilate that. Dilate means हमें उसमें रिफ्रैक्टिव पावर उस आई में है या नहीं है, वो हम मशीन्स के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और क्या उस एज के लिए उतना नंबर ओके है या हमें उसको देने की जरूरत है चश्मे की, तो वो भी हम देख सकते हैं। तो नंबर आना जीन्स के ऊपर भी है, पेरेंट्स, बोथ ऑफ द पेरेंट्स हैव बिग स्पेक्स, फैक्टर, बिग फैक्टर। सो जैसे दोनों पेरेंट्स को स्पेक्स लगी हुई हैं, तो उनको तो स्पेशल जाके हमने न्यूबॉर्न चाइल्ड का चेक करवाना चाहिए, सो दैट द अर्लियर द बेटर। न्यूबॉर्न में अगर इन केस आइडियली व्हेन द चाइल्ड इज बॉर्न विद इन 4 to 6 months पहला चेकअप आपका हो जाना चाहिए। ओके। जिसमें हमें ये देखना है कि क्या बच्चे की आई बॉल की ग्रोथ नॉर्मल है, उसमें कोई इतना बड़ा नंबर तो नहीं है जो बाद में बहंगेपन को या रोशनी को कम कर सकता है, कोई कैटरेक्ट, कोई सफेद मोतिया तो नहीं है जो जमांतरू होता है, अच्छा, कोई पर्दे में कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है, पर्दा पूरा बन गया है कि नहीं बन गया। सो या आइडियली फर्स्ट चेकअप शुड बी बाय 3 to 4 months, मैक्सिमम बाय 6 months। एक बार आई चेकअप होना ही और चाहिए। अगर सपोजिटली मैं अपने बच्चों की बात करूं, आई हैव gotten the test of my elder one done, but my younger child is 5 years of age, तो अभी तक I have not gotten her eye checkup done. So आपको क्या लगता है कि मेरे को अभी टेस्ट करवा लेना चाहिए, बिकॉज कोई हाँ, शी इज नॉट कंप्लेनिंग अबाउट एनीथिंग, मतलब शी इज नॉट कंप्लेनिंग दैट आई एम हैविंग हेडेक, और स्टिल यू नो हमने 3 स्टेजेस तो ऐसी डिफाइन करी हैं जहाँ पे हमें बच्चे की आईज का चेकअप करना ही करना है। वन इज व्हेन द चाइल्ड इज न्यू बॉर्न, विद इन 6 months उसका आई चेकअप होना चाहिए। सेकेंडली, इन just when the child is toddler and in a preschool age, okay, at that time your refractive power and number checkup is very important, and then when the child starts going to school, then the number चेकअप वन, ये 3 तो मैंडेटरी करने ही कर, जो हम बहुत लाइक कॉमनली इग्नोर करते हैं। आई डोंट थिंक सो दैट even 20-30% of parents get them done, but it is necessary, because if we find out what is the cause, इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो हम उसको टाइमली पकड़ के एंड उसको ट्रीट कर सकते हैं। right. So I've heard a lot about this atropine drops. They say कि these drops are put in the eyes of children only, not in the adults. What is the logic behind it? Because I have heard so many times about it. One is atropine drops, which is a full strength atropine drops, which is used to find out the power of the number, power of the eye. They are even used in many diseases. वो तो सिर्फ नंबर निकालने के लिए। अच्छा, जैसे हम भी जैसे we go for regular checkup to the doctor, they put the drops for the dilation of the eyes. Those are different. That is phenylephrine with tropicamide combination. जो एट्रोपिन ड्रॉप्स होते हैं, उससे क्या होता है कि 15 दिन हमें बहुत ब्लर दिखता है, तो बेसिकली अकोमोडेशन को लूज करने के लिए, बच्चों में चश्मा का नंबर निकालने के लिए एट्रोपिन, होमेट्रोपिन, कुछ ऐसे ड्रॉप्स यूज करते हैं जो आफ्टर 10 years ऑफ एज हमें इतना जरूरी नहीं होते हैं। सो आफ्टर 10 years और 12 years ऑफ एज, जब हमारा जो फोकसिंग पावर है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता जैसे कि छोटे बच्चों में होता है, तब हम नॉर्मल जैसे फिनाइलेफ्रिन ड्रॉप्स डाल के हम नंबर निकालते हैं। राइट, क्योंकि जब डायलेशन हुई है आईज की, तो द चाइल्ड lens has this capacity to adjust according to the environment. Yes, auto focusing. Right. Auto focusing के क्या साथ क्या होता है, उसके मसल्स अपने आप ही फोकस करते रहते हैं और जोर से वो देखते रहते हैं। हालांकि बच्चा पूरा क्लियरली देख लेता है, उसका नंबर फिर भी होता है, और अगर वो नहीं लगाता तो उसके हेडेक्स और ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं। सेकेंड इज एट्रोपिन इन 0.01 concentration, 0.1 concentration. That is 10 times dilution of the normal
एट्रोपिन ड्रॉप्स जो हम एज अ ट्रीटमेंट भी देते हैं बच्चों को, ताकि उनके चश्मे का नंबर ना बढ़े। जो मायोप्स होते हैं उनमें हम एज अ ट्रीटमेंट कुछ एट्रोपिन डाइल्यूटेड ड्रॉप्स दे सकते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट स्क्विंट, बच्चों के अंदर कई बार देखा गया है वो स्क्विंट का भी यही रीजन है बिकॉज ऑफ द पावर की कुछ प्रॉब्लम इन द लेंस, और बाय बर्थ भी होता है स्क्विंट? Squint has many reasons. One of the reasons is definitely power. Other reasons can be पीछे पर्दे में जान नहीं है। अच्छा, the muscles are weak. Not muscles, your retina is weak. Okay. पीछे रेटिना में ही विजन नहीं है तो वो आई लेजी होके बाहर चली जाएगी। अच्छा, चश्मे का नंबर है, हम चश्मा नहीं लगा रहे हैं, तो क्या होगा, मोर फोकसिंग करने के लिए कारण दोनों आईज अंदर जा सकती है। माइनस नंबर है, मतलब स्क्विंट कैन बी बिकॉज ऑफ योर रिफ्रैक्टिव पावर इफ इट इज अनट्रीटेड, उसको ट्रीट नहीं किया तो बड़ों के अंदर भी हो जाता है ऐसे स्क्विंट? बड़ों में भी स्क्विंट होता है, बट जो रिफ्रैक्टरी स्क्विंट है मींस जो चश्मे की पावर के कारण स्क्विंट है, दैट इज मोर कॉमन इन चिल्ड्रन दैन इन एडल्ट्स। इन एडल्ट्स देयर अदर कॉजेस, कोई मसल पैरालिसिस हो गया, सम ट्रॉमा टू द मसल इज देयर, कोई इंजरी हो गया, उसके बाद देयर आर अदर कॉजेस। सो वॉकिंग barefoot on grass improves our vision? Neither yes nor no, because in Ayurveda and in our old Sanskriti, it says it improves, but no such studies have been found. बोलते हैं ना सुबह सुबह ठंडी ग्रास के ऊपर ओस की पड़ी हुई ग्रास के ऊपर चलो तो yes, हम हमारी संस्कृति में है, बट कोई ऐसी स्टडीज फिलहाल नहीं है। some people they soak the trifla in the night, overnight, भिगोने के बाद उसकी आंखों में छींटे मारते हैं और ठंडे पानी के छींटे मारते हैं। So are these good or bad? Bad, not good. Not good. ठंडे पानी का छींटा भी नहीं? वो भी not so often, एक आधी बार is okay. Reason, जो अपना pH होता है टीयर फिल्म का, वो और पानी के pH में डिफरेंस होता है। Okay. जितना ज्यादा हम पानी डालेंगे वो उतना आंखों को इरिटेट करेगा। एक आधी बार इफ यू वांट टू डू तो फ्लश आउट करने के लिए इट्स ओके। बेटर अल्टरनेटिव इज गो फॉर सम लुब्रिकेंट आइटम्स। राइट। कैन यू सजेस्ट एनी लुब्रिकेंट अगेन द रिफ्रेश्ड ईयर्स? एनी कार्बोक्सीमेथाइल सेलुलोज ट्राई। सो माय मदर-इन-लॉ हैज कैटरैक्ट, उनको बोला कि कैटरैक्ट की सर्जरी कराओ, तो आर देयर स्पेसिफिक लेंसेज आफ्टर दैट? और कैटरैक्ट के बाद जिनको चश्मा है उनका चश्मा भी उतर जाता है? तो अभी हम बोल रहे हैं कि आफ्टर 40 चश्मा नहीं निकलता। जब आप कैटरैक्ट का ऑपरेट करेंगे तब बता दूंगी मैं। अच्छा, ऐसा होता है? यस, डेफिनेटली जब हम कैटरैक्ट के ऑपरेट के लिए जाते हैं, वी हैव अ ह्यूज रेंज ऑफ लेंसेज जो डाल सकते हैं। जो बहुत देर से आजमाया हुआ लेंस है, दैट इज मोनोफोकल लेंस, मतलब जो खाली दूर की विजन को क्लियर कर देगा। कंप्यूटर और नियर के लिए आपको चश्मे की जरूरत चाहिए होती है। मोस्टली लेंस इसी तरह के होते हैं। आजकल जो नए तरह के लेंस आए हैं वो है मल्टीफोकल EDOF लेंस या ट्राइफोकल लेंस। मल्टीफोकल में दूर, इंटरमीडिएट और नजदीक सब क्लियर हो जाएगा, पर ड्राइविंग के टाइम थोड़ा लाइट फैल सकता है। ओके। तो बेसिकली हाउसवाइफ्स के लिए बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। द हेलो इफेक्ट? यस, द हेलोज दे आर मोर विद मल्टीफोकल। ओके। दे आर लेस विद EDOFs. EDOFs are one of the best lenses. So expensive भी होते होंगे? Yes, expensive तो definitely है, but आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से दे आर वेरी नाइस। जो EDOF लेंसेज है उसमें वो हेलो इफेक्ट भी नहीं आता, इवनिंग स्कैटरिंग भी नहीं होती, दूर का भी क्लियर हो जाता है, स्क्रीन भी क्लियर हो जाता है। हार्डली रीडिंग के लिए माइट भी थोड़ा बहुत चश्मे की जरूरत पड़ सकती है, वो भी ना के बराबर। गुड कि कैटरैक्ट आ गया तो तुम्हारा नंबर भी खत्म हो जाएगा। कैटरैक्ट के टाइम तुम्हारा नंबर निकाल। Lastly, I'll be talking about sunglasses also. तो sunglasses style statement भी है. So you wear sunglasses, which is protective for the eyes also in UV rays, against the UV rays. But कई बारी blue sunglasses होती हैं, कई ने some people they wear the yellow colored sunglasses. So which type of sunglasses we should opt for? See, जब भी आपने sunglasses लेनी है ना, और कभी भी कंजूसी नहीं करनी। अच्छे ब्रांड का लो जिसमें अच्छी यूवी प्रोटेक्शन की लेयरिंग हो, ऑथेंटिकेटेड हो। राइट। क्योंकि हर एक बंदा कह देगा कि ये यूवी, जैसे रास्ते में चलते हुए फेक कॉपीज नहीं उठानी चाहिए। सो बेसिकली जस्ट सी, आपको फैशन ट्रेंड तो हमने लेना ही है, बट लेट अस बी सेफ अलोंग विद दैट। अकॉर्डिंग टू मी,
एक जो अच्छा सन ग्लास है वो हमारी नेसेसिटी है, डेली नेसेसिटी है। फैशन स्टेटमेंट तो अलग दूर की बात है। राइट। जो धूप है हमारे लिए बहुत अच्छी है, पर उसकी प्रोटेक्शन करना बहुत जरूरी है। अगर हम ग्लासेस नहीं लगाते, हमारा सफेद मोतिया बढ़ सकता है, पर्दे में इफेक्ट आ सकता है, आईज की एजिंग बहुत फास्ट हो जाती है। सो योर आईज प्रोटेक्शन विद सन ग्लासेस इज वेरी इंपॉर्टेंट विद गुड यूवी प्रोटेक्शन। एंड येलो ग्लासेस, ब्लू ग्लासेस, दैट इज अप टू यू, जैसा यूज करना है। मतलब सो ऐसा जो कुछ टिंट है हाँ। बहुत आते हैं। Some people feel that they are more comfortable in lighter tints. Okay. They can go for lighter tints. Some people feel comfortable in darker tints. But this tint has nothing much to do with protection of eyes. Whichever is suitable Yes, for your dark eyes. भी उतना ही protect करेगा इसको, Light. light भी उतना ही करेगा। बेशक अच्छा, मतलब thing is उसके ऊपर अच्छा UV कोटिंग होनी चाहिए। काले गड्ढे आ जाते हैं आंखों के आसपास, डार्क सर्कल्स, व्हाट आर द रीजंस? बोलते हैं नींद पूरी नहीं हुई तब तुम्हारे आंखों के आसपास काले घेरे आ गए हैं, खाना कम खाया है, यू आर नॉट टेकिंग प्रॉपर फूड, सो व्हाट आर द रीजंस एंड हाउ टू प्रिवेंट डार्क सर्कल्स? 2 रीजंस तो आपने बता ही दिए। डेफिनेटली नींद अगर कम है ना, और फूड इनटेक प्रॉपर नहीं है, दीज आर द मेजर रीजंस जिसके कारण काले घेरे आंखों के आसपास आते हैं। Another reasons are more sun exposure. Okay. So, but we are saying that sun exposure is good for our eyes. It is good for our eyes, but in case you don't apply the sunscreen, okay. then it's bad for our eyes. then that is bad for our eyes. So sun protection तो जरूरी है. So sun is another reason. Then another is some nutritional deficiencies. Okay. ठीक है, उसके कारण भी ये काले घेरे बढ़ते जाते हैं, स्पेशली आयरन की डेफिशिएंसी। आयरन में क्या होता है कि हमारे खून की कमी जिसको बोलते हैं, खून की कमी में वैसे पेलर हो जाता है, वैसे बंदा पेल लगता है, राइट, लेकिन आंख के पास के घेरे बढ़ते रहते हैं। अनदर इज हेरिडिटरी। ओके, बहुत कॉमनली देखा जाता है, हेरिडिटरी होता है, मींस आपके पेरेंट्स को, मम्मी को था, आपको भी है, अच्छा ना? तो देयर इज नो अदर रीजन, जस्ट जेनेटिक, मतलब ना, हाँ, इन दैट सच पेशेंट्स इट इज जेनेटिक। देन बट देयर आर हार्मोनल कॉजेस आल्सो। ओके, ठीक है, जब हमारे बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तब भी हो सकते हैं, बट उसके साथ पफिनेस भी एसोसिएटेड होती है मोस्टली। सो अगर इनके बाकी सब का कारण रूल आउट हो जाते हैं तो बाद में हमें एक बार हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में देखना होता है। सो आइडियली हैव लॉट ऑफ फ्लूइड, हैव गुड डाइट, अच्छे से सनस्क्रीन लगाइए एंड मॉइस्चराइज योर स्किन अ लॉट, तो ये काले घेरे कम। Hisar being a very dry city and changing season, after Diwali pollution levels are like on an increase. इससे related भी dryness of the eyes, आंखों में redness, watery eyes होती हैं। Yes, we have lot of patients जो स्पेशली एलर्जिक पेशेंट्स हैं। जब ये पटाखों के कारण दिवाली के अराउंड जो पोल्यूशन हुआ है उसके कारण like normal OPD has increased and it always increases, हर साल बढ़ती है जब धुआं होता है, तब ये रेडनेस, इरिटेशन, एलर्जी के और ड्राइनेस के केसेस बढ़ जाते हैं। जिनमें ऑलरेडी ड्राइनेस होती है उनकी ड्राइनेस प्रेसिपिटेट हो जाती है, बढ़ जाती है, एंड एलर्जिक पेशेंट्स को एलर्जी और हो जाती है, तो ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और एंड इस बार भी केसेस डेफिनेटली और इंक्रीज। So what is this conjunctivitis, pink eye? This is the one, or that is different? No, that this is but what I am talking about is allergic conjunctivitis. Okay. Allergy means किसी चीज को इरिटेट हुआ हमारा बॉडी और वो आंख लाल हो गया, ठीक है, तो ऐसे में हम एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रॉप्स देते हैं, ज्यादा एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती। कंजक्टिवाइटिस एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, जिसमें इन्फेक्टिव कंजक्टिवाइटिस भी हो सकता है, एलर्जिक भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरिया, सो दैट्स अ वास्ट थिंग। हाँ, बेसिकली वो भी होता तो पिंक आई ही है, बट वो एक दूसरे से फैलने के टाइप हो जाता है, जैसे बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, आंख दुखनी आ गया टाइप होते हैं ना, तो बट जो अभी सीजनल चेंज के साथ होता है वो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। आफ्टर 40 बोलते हैं कि आंखों का नंबर आएगा ही आएगा, वो शायद पास का आएगा। हाँ। और आफ्टर 40 हम बात करेंगे लेजर ट्रीटमेंट्स की भी। तो पहले तो ये कि 40 के बाद ऐसा क्या होता है कि हमें हमारे आंखों का नंबर आना ही है? लाइक आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग कि जो हमारा लेंस होता है आंख के अंदर ना, क्या होता है, आंख बॉल की तरह होती है, यहाँ कॉर्निया से लाइट आती है,
यहाँ लेंस पड़ा होता है जो लाइट को फोकस करता है और रेटिना के ऊपर फोकस जाके बनाता है। जो विद एजिंग वो जो लेंस होता है, लेंस कुछ फाइबर्स के साथ टंगा होता है जिनको मसल्स कंट्रोल करते हैं, ठीक है। विद एजिंग वो जो मसल्स हैं उनमें वीकनेस आनी शुरू हो जाती है। आफ्टर 40 जो उनको कंट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी है और लेंस की जो शेप चेंज करने की एबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो जो रेज ऑफ लाइट है वो अच्छे से फोकस नहीं हो पाती, स्पेशली रीडिंग के लिए, क्योंकि रीडिंग के टाइम ही वो फोकस होता है ज्यादा हमने कंसंट्रेट करके तो वो मसल्स काम नहीं करते, तो हम नजदीक का पढ़ नहीं पाते। दूर का तो अभी भी पढ़ पाते हैं, नजदीक का नहीं पढ़ पाते। तो उसके लिए हमें पावर चाहिए ताकि हम नजदीक। तो आफ्टर 40 by hook or by crook you have to wear the glasses, whatever you मतलब कर लो, खाना अच्छे से खा लो, योगा कर लो, एक्सरसाइज कर लो, नजदीक का नंबर तो आएगा ही आना। मतलब ये है कि किसी का कम आ गया, किसी का ज्यादा आ गया। हाँ मतलब हाँ, it has to come. And it is okay also. I guess half of you have lived half of your life. What they say that 80 years of age जो है भगवान ने तुम्हें दी है, जैसे तो 100 साल दी है, but चलो 40 साल ऐसे गुजर गई। नहीं, we can give you contacts also जिससे याद आएगा। We have some lasers also, but best glasses ना। So yeah, now talking about the laser therapies. So starting में बहुत पहले I have heard about LASIK lasers. Now I am hearing lot of this silk. So laser treatments क्या हैं और कौन से नंबर तक हम लेजर ट्रीटमेंट करवा सकते हैं अपनी आंखों से चश्मा हटाने के लिए? ओके, जब भी हमने रिफ्रैक्टरी प्रोसीजर के लिए जाना है, हर एक पर्सन, एवरीवन इज नॉट फिट फॉर गेटिंग द लेसिक डन। फॉर गेटिंग द लेसिक डन योर एज शुड आइडियली बी लेस देन 35 या 40 इयर्स ऑफ एज। मैक्स 40 लेते हैं क्योंकि आफ्टर 40 नजदीक का नंबर आना शुरू हो जाता है। तो अगर पेशेंट इज ओके तो we can go in some cases, but ideally we say no to LASIK. I have heard so many doctors saying no after 40. There is so after these celebrities, they are कोई भी celebrity हो, हेमा मालिनी, जया बच्चन, everybody they are roaming without the glasses. There are many reasons like treatments like contact lens use कर सकते हैं। अच्छा, so they must be using contact lenses. हाँ, and secondly ऑर्थो के लेंस होते हैं। अच्छा, ऑर्थो के लेंस भी एक मिरेकल है। रात को सोने के टाइम कॉन्टैक्ट लेंस पहन के सो, रिजिड लेंस होता है। अच्छा, सो जाओ कॉन्टैक्ट लेंस। हाँ, that is the therapy. But then you are saying we should not. This is ortho के, this is another ortho के लेंस। सुबह उठो, वो लेंस को उतारो और आपका नंबर एक दिन के लिए काम चल जाएगा। हाँ, so such lenses are also there. That is what I'm telling you. What might be these they people must be doing it. So after 40 you are saying that no laser. No. Ideally no laser, but if the patient is reluctant that I have to get it done because I just don't want the specs. So तो इसको है कि नजदीक का तो लगाना ही पड़ेगा भाई, दूर का तेरा फिर भी हटा दे। Actually thing is after 40s or 45 cataract changes भी start होने लगता है। So it is not a guarantee. Cataract is the whitening of the lens. Yes, that is normal aging. 40s and 50s में ये बहुत commonly start हो जाती है। तो आइडियली क्या होता है कि आप लेजर कर तो दो ऐसे पेशेंट्स में, पर उस पेशेंट को बेचारे को क्या फायदा हुआ, कितना फायदा हुआ, 6 महीने, साल, 2 साल, 4 साल, like what's the use of putting your eye through surgery when you cannot enjoy the benefit of the surgery for so long. So what I've heard, you cut or burn a particular area of basically it is like remodeling of the cornea. Cornea की शेप को चेंज करते हैं। आई अगर बॉल की तरह है, सबसे आगे कॉर्निया होता है, काला कोया, यहाँ पीछे पर्दे में रोशनी बनती है। ये जो कॉर्निया होता है, हम इसकी शेप को चेंज करते हैं, इसको चेंज करते हैं ताकि ये ही एक लेंस की तरह काम करे। जो इसके आगे चश्मे पे लेंस लगना है, ये उसी की तरह काम करे और पावर को नीचे फोकस में ले आए रेटिना को। इसको हम कॉन्केव की तरह भी बना सकते हैं इन केस ऑफ मायोप्स, और कन्वेक्स की तरह भी बना सकते हैं इन केस ऑफ hypermetrops. So these are different types of surgeries which we can go in LASIK or in PRK. There are many surgeries which we can do. And the thing which you were talking about is silk, which is also this type of remodeling. In LASIK what we do, जैसे ये कॉर्निया इतना मोटा है, इसके ऊपर का लेयर को ऐसे उठाया, बीच में लेजर किया, खाया और इसको फिर रख दिया रिमॉडल करके, और वो चिपक गया। दिस इज सिंपल लेसिक प्रोसीजर। ओके।
सो इसमें इतना बड़ा कट है जो या मशीन बनाएगी या डॉक्टर बनाएगा। जो सिल्क प्रोसीजर है उसमें जो ये कट है ना, हार्डली इतना सा होता है, मीन्स हार्डली 1 clock hour, 1 to 2 clock hours। एंड उसके अंदर जो कटिंग है, बीच का जो डिस्क की तरह जो एरिया है वो लेजर से कट जाता है। डॉक्टर उस एरिया, कटिंग एरिया से जाके उसको निकाल लेता है। तो इसमें क्या होता है, जो कटिंग है और कॉर्निया की जो एरिया जिसके ऊपर हम उठाते हैं, जो परमानेंटली वीक होता है, वो कम होता है। This is a scary procedure. No. Lot of precision is needed from the doctor side. Obviously, the doctor. Yes. It needs more skill for a doctor to do a silk. But otherwise, it is a safe procedure. Yes, otherwise it is a safe procedure. Indeed, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, we always recommend if they are fit, तो वो सिल्क ही की तरफ ही जाएं। अच्छा। In या स्माइल प्रोसीजर, सिल्क या स्माइल, is the same thing. Different machines instead of going for LASIK. I have heard that cornea की thickness के ऊपर भी depend करता है। अगर cornea बहुत जरूरत से ज़्यादा पतला है, then we should not go for these treatments. Yes, then we cannot go. We cannot. एक thickness होती है minimum, अगर जो हम हमने छोड़नी है। अगर वो नहीं है तो cornea bulge कर जाएगा और आपकी vision चली जाएगी। And the pregnant and lactating mothers नहीं करा सकते। वो नहीं करा सकते। जिनके पर्दे में कमजोरी है, पेरिफेरी में बहुत ज़्यादा डीजनरेटिव चेंजेस हैं या होल्स हैं, ऐसे में पहले लेजर करके, पर्दे का लेजर करके उसके बाद कर सकते हैं। जिनमें बहुत सीवियर ड्राइनेस है, ऐसे केसेस को भी हम अवॉइड करते हैं। जिनके आंख के शीशे, कॉर्निया के ऊपर कोई चेंजेस, डैमेजेस हैं, उनको भी हम अवॉइड करते हैं। So what? Cataract and the myths around cataract. मोतियाबिंद जो बोलते हैं, सफेद मोतिया, काला मोतिया, इसका हमें ऑपरेशन करवाना चाहिए, कब करवाना चाहिए? जिसे बोलते हैं रेनी डेज में नहीं कराना चाहिए। Is it true कि रेनी डेज में इन्फेक्शन ज्यादा हो जाता है? जो सफेद मोतिया है, व्हाट इज सफेद मोतिया? जो आंख का लेंस होता है वो सफेद होने लग जाता है विद एजिंग, या बिकॉज ऑफ सम डिजीजेस लाइक डायबिटीज, या बिकॉज ऑफ सम स्टेरॉइड यूजेज। जब वो लेंस सफेद होने लग जाता है उसको हम कैटरेक्ट बोलते हैं। कैटरेक्ट का क्या ट्रीटमेंट है? हम सर्जरी करते हैं जिसमें वो कैटरेक्ट को निकाल के वहाँ लेंस लगाते हैं। जो आजकल के मॉडर्न प्रोसीजर है, जो हम फैको सर्जरीज करते हैं, उसमें क्या होता है, जो इंसिजन साइट होता है वो बहुत ही छोटा आता है, हार्डली 2.2 mm। पहले इट यूज्ड टू बी अराउंड 10 to 12 mm पहले वाली सर्जरी। तो उसमें इतना बड़ा वुंड होता था तो हीलिंग भी स्लो होती थी। इसमें वुंड ही इतना छोटा सा है, हीलिंग इज वेरी फास्ट। हम इंडीड ऑपरेट करके पेशेंट को चश्मा लगा के ही घर भेज देते हैं। टॉपिकल करते हैं, मींस बिना इंजेक्शन के करते हैं। पेशेंट आता है एंड ऑपरेट करवा के चश्मा लगा के घर चला जाता है। सो रिकवरी इज वेरी क्विक। सो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इस मौसम में करवाना है, इस मौसम में नहीं करवाना है। व्हेन यू आर फिट, बीपी ठीक है, शुगर ठीक है, कोई आपका एक्टिव डिजीज नहीं है, यू आर फिट फॉर गेटिंग द कैटरेक्ट सर्जरी इन एनी मंथ। किसी भी महीने में आप सर्जरी करवा सकते हैं। तो एनेस्थीसिया दिया जाता है? हाँ, देयर इज टॉपिकल एनेस्थीसिया। टॉपिकल एनेस्थीसिया मींस ड्रॉप्स डालते हैं, ड्रॉप्स के साथ ही सुन हो जाता है। सो पेशेंट नोज दैट यू आर डूइंग समथिंग। डेफिनेटली पेशेंट को सुलाते नहीं है, पेशेंट नोज। तो इट इज डिस्कम्फर्ट फॉर देम। सर्जरी कर रहा है, सारी डॉक्टर की बातें सुनते हैं। सो इट मस्ट बी लिटिल स्कैरी फॉर द पेशेंट। Actually we always counsel the patient. What I try is, जब भी मैं ऑपरेट करती हूँ, I have a habit of talking to patient. माता जी अभी ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं, बस मोतिया खा लिया है, अभी लेंस डालने लगी हूँ, आंख को टिका के रखिए, कोई घबराने वाला। So basically if your doctor is comforting you, yes, I don't think so. Because surgery in the name itself is surgery, as the name is surgery, but eye surgery, it is good surgery in your good hands. There is a correlation of diabetes and eyes. मतलब जैसे eyes के अंदर blood vessels हैं, we can see the blood vessels through the naked eyes. तो मैंने सुना है कि तुम अपनी आँखों की जो blood vessels है उससे भी चेक कर सकते हो कि आपको डायबिटीज है and vice versa. Yes. कि डायबिटीज से हमारी आँखों की पावर कम हो जाती है। And what is this diabetic retinopathy? Yes. डायबिटीज का आईज के ऊपर बहुत ही मेजर इफेक्ट है। माइक्रोवास्कुलर चेंजेस जो होती हैं डायबिटीज में 3 जगह पे आती है। एक तो न्यूरोपैथी, मींस नर्व्स में चेंजेस आने लग जाती है।
हमारे पाँव में जलन महसूस होती है, हाथों में जलन महसूस होती है, नमनेस होती है। सेकेंड इज नेफ्रोपैथी, नेफ मीन्स किडनी के ऊपर इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। एंड थर्ड माइक्रोवेस्कुलर चेंजेस जो आती हैं वो आती हैं आईज के ऊपर। आईज में जो पर्दा होता है, जो रेटिना बोलते हैं, वहाँ पे जो वेसल्स हैं वो लीक करना शुरू हो जाती है, वहाँ ब्लड आना शुरू हो जाता है, सूजन आनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण उसका विजन है वो ड्रॉप होने लग जाता है। ओके। विजन ड्रॉप होने के दो कारण होते हैं डायबिटीज में। एक तो होता है जब उसका पर्दे के ऊपर इफेक्ट आता है, जिसको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। एंड सेकेंडली जब उसका लेंस जो है, जो मोतिया बन जाता है, लेंस सफेद होना शुरू हो जाता है, दैट इज क्लाउडिंग ऑफ द लेंस, जिसको हम कैटरेक्ट बोलते हैं। उसके कारण में विजन कम होने लगता है। कैटरेक्ट जो है, सफेद मोतिया जो है, वो डायबिटिक पेशेंट्स में नॉर्मल से ज्यादा तेजी से बढ़ता है एंड ज्यादा होता है। India is known as the blind capital of the world, I guess, because of the increased cases of cataract. नो, कैटरेक्ट तो उतना ही है, उतने ही सर्जन्स है। देयर आर मेनी रीजंस जिसके कारण ये ब्लाइंडनेस बढ़ रही है, जिसमें से डायबिटीज एक मेजर कारण है। हम क्या होता है, डायबिटीज है, दवाई पेशेंट डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए ही अच्छे से नहीं लेते, आई चेकअप करवाना तो दूर की बात है। सो अगर आपको डायबिटीज है, टाइप 2 डायबिटिक हो, मींस आफ्टर 30s आपको डायबिटीज डायग्नोज हुआ है, जैसे ही डायग्नोज हुआ है आपको एक आई का रेटिना चेकअप मींस पर्दे का चेकअप कराना बहुत 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 जरूरी है। उसके बाद एवरी 1 ईयर to 2 ईयरली आपको अपने पर्दे का चेकअप करवाना है, आईज का चेकअप करवाना है। आईज का चेकअप जस्ट डजंट मीन जस्ट विजन करवा लिया, रिफ्लेक्शन करवा लिया एंड काम खत्म। रेटिना चेकअप करवाना है, पर्दा चेकअप करवाना है, टू सी कि वहाँ पे चेंजेस बढ़ तो नहीं रहे। दैट ग्रॉसली टेल्स यू कि आपका डायबिटीज कितना कंट्रोल में है। अगर अच्छा कंट्रोल में है, पीछे रेटिना में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अगर वो अनकंट्रोल्ड है तो पर्दे में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। What is the cause of puffiness around eyes? Okay, puffiness around eyes has many causes. It can be local, means जो आँख के आसपास, और बॉडी के causes. Okay. लोकल जो आँख के आसपास के causes हैं, कोई भी आँख में सोजन है, एलर्जी है, these are the big factors जिसके कारण puffiness आँख के अराउंड होती है। Then are the other factors. Other factors means जैसे जैसे एजिंग होगी हमारी स्किन लूज होगी। आईज के अराउंड ये जो एरिया है, ये स्किन सबसे ज्यादा सेंसिटिव और पतली होती है। तो जब भी हम एज करेंगे तो ये पतला होने के कारण इसके नीचे जो फैट होता है वो प्रोट्रूड करता हुआ दिखाई देता है, तो लगता है जी पफिनेस हो गई। अदर कॉजेज आर फ्लूइड रिटेंशन इन योर बॉडी, किडनी प्रॉब्लम्स, if you have any allergy in the body, these are many factors जिसके कारण puffiness होती है। कई बारी there is no symptom, there is no cause, I guess naturally somebody has a puffy eye, ऐसा भी होता है कुछ? See, not puffy eye, some actually आंखों की बनतरी इस तरह है, like you said, like in some mongoloid slangs, like some eyes are like that. But mostly if it is not there since birth or since childhood, then it means कुछ problem है तभी आया। Talking about this आँखों का फड़कना, twitching of the eye, हम लोग तो बोलते हैं कि ऐसे गर्ल्स में अगर लेफ्ट आई फड़कती है तो अच्छी है, बॉयज में राइट आँख फड़कनी अच्छी है। सो मेडिकल टर्म में ट्विचिंग ऑफ द आई को क्या बोलते हैं एंड साइंटिफिक रीजन क्या है इसका? एक्चुअली आंख कोई भी फड़कनी अच्छी नहीं है। अच्छा नहीं तो बोलते ना कौन सी फड़क रही है तो आज कुछ अच्छा होगा। इट इज बेसिकली नोन एज मायोकीमिया। हमारे जो मसल्स है, जो नर्व्स है, यहाँ पे इरिटेट हो जाती है। उसके कारण क्या होता है, नर्व्स उस मसल्स को बार बार इरिटेट करती रहती है, इसको हम आंख फड़कना और मायोकीमिया। सो इरिटेट क्यों होती है? मेनी कॉजेस। मोस्ट कॉमन कॉज है साइकोलॉजिकल कॉज। जब भी हमारा स्ट्रेस होता है, इट इज वन ऑफ द कॉमन कॉजेस। जैसे पेरेंट्स पुराने टाइम में कहते हैं ना, कोई टेंशन है, टेंशन कारण ये भी बोलते हैं ना आंख फड़क रही है, कुछ बुरा होने वाला है, मे बी क्योंकि वो टेंशन है। तो so stress is one of the another main causes. It can be because of high BP also. It can be because अगर in case एकदम से आपका वेट कम हुआ है, तब भी फड़कना शुरू हो सकती है। इन केस आप का फ्लूइड का बहुत ज्यादा लॉस हुआ है, तब भी हो सकती है। आप रिसेंटली कोई इलनेस के थ्रू कोई बीमारी रही हो या बीमार है, तब भी फर्क सकता है। सो वीकनेस जो है वो
वो भी इस तरह से प्रेजेंट कर सकती है। हल्का फुल्का कभी कभी फरकना इज ओके, जो विद टाइम गरम मसाज या कुछ गरम सिकाई या मसाज के साथ ठीक हो जाती है। बट इन केस इफ इट इज टू ऑफन और इस फरकने के साथ पूरा एरिया फरकना शुरू हो जाता है, पूरी आई फरकती है, तो उसको हम ब्लेफारोस्पैज्म बोलते हैं। उसके लिए हमें फर्दर मेडिकल ट्रीटमेंट्स लेने So it पड़ is सकते like हैं। कोई सिम्टम है कि कोई और डिजीज है हमारी बॉडी में? Yes, it could be कि कोई क्रॉनिक डिजीज और लाइक it could be some inflammation, उसके कारण वो कोई सारे एलर्जिक रिएक्शन? लेस ऑफ एलर्जिक रिएक्शन, मोर ऑफ इरिटेशन ऑफ द नर्व। तो उसको रिलैक्स करने के लिए हम इंजेक्शंस लगा सकते हैं एसेंशियल ब्लेफारोस्पैज्म के लिए। पेशेंट्स आंख झपकना बंद ही नहीं करता ऐसे, तो ऐसे केसेस में हमें फर्दर ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है। अदरवाइज विद टाइम स्ट्रेस कम करो, मल्टीविटामिन दो, कुछ ड्रॉप्स दो, सिकाई करो, इट गेट्स ओके। Some people are in a habit of blinking their eyes like a lot of times. I also do that. When I usually blink at a higher rate than the normal people. So how is that? And it is like regular, normal thing. If अगर तुम जरूरत से ज्यादा according to you तुम blink कर रहे हो, अगर मोर देन नॉर्मल ब्लिंकिंग है तो ये प्रॉब्लम के कारण भी हो सकता है। मींस माइट बी यू आर हैविंग सम रिफ्रैक्टिव पावर, कोई चश्मे का नंबर है, आप फोकस नहीं कर पा रहे, बार बार आपको झपकना पड़ रहा है, स्क्वीज करना पड़ रहा है। माइट बी आपको एलर्जी है, बच्चों में बहुत कॉमन है, बच्चे ऐसे ऐसे करते रहते हैं। not like ऐसे मतलब you keep on blinking, you have a habit of like blinking, not like उसके लिए हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं। जिनको ड्राइनेस होती है उनमें ये बहुत ऑफन। So for that you should put the refresh tears on. Yes, for that you should decrease your screen usage and use some drops. Okay. There's a famous ophthalmologist, Dr. Rahil Chaudhary. I've heard he's a Guinness Book record holder of the maximum refractive surgeries. मैंने अभी सुना है कि he is saying that at one point of time जो population है world की, that will be 100% myopic, because as a society we are going towards that stage only. In Japan और बहुत सारी ऐसी जगहों पे there are so many of people who are maximum, यहाँ पे भी इंडिया में भी पहले जब हम छोटे थे I guess तो एक क्लास में सिर्फ एक दो बच्चे होते थे जिनकी स्पेक्स लगी हुई थी। अब on the contrary यहाँ पे एक दो बच्चे हैं जिनकी नहीं होती हैं स्पेक्स। So we are going towards that. Yes, I think we are going towards that epidemic where myopia is predominant everywhere. Yeah. मतलब हर एक बच्चे को चश्मा है, हर एक बच्चे की आंखें कमजोर है, और इसका वही कारण है जो मेन कारण मैंने बताया। एक तो स्क्रीन, दूसरा हमारा डाइट, तीसरा विजुअल हाइजीन, हमारा बाहर घूमना फिरना बिल्कुल जीरो हो गया है। Sunlight is also very important in maintaining good eyes. Yes, important. अगर वो बाहर हम नहीं जा रहे हैं, बाहर हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं, हमारी आईज अंदर 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 ही रह रही हैं, हम आईज को वो ग्रोथ नहीं दे पा रहे, वो एक्सपोजर नहीं दे पा रहे कि ब्राइट आईज में भी हम देख सकते हैं। हाँ, तो वी नीड कि वो अंदर के लिए अकोमोडेट करना छोड़ के बाहर के लिए, दूर के लिए फोकस करना शुरू करें और उनके मसल्स प्रॉपर्ली ग्रो कर जाएंगे। एंड टॉकिंग अबाउट कॉन्टैक्ट लेंसेज, इट इज मतलब यू लुक गुड, फैशनेबल थिंग कह लो फॉर गर्ल्स। जैसे ऑब्वियसली हमने साड़ी डाली हुई है, शादी पे गए हैं और ऊपर से हमने चश्मा लगा लिया, तो ऑब्वियसली वी विल नॉट लुक गुड ना, कि हमें अच्छा नहीं लग रहा। So what about these contact lenses? Are these lenses good? We should regularly use them. मतलब tell about this. Contact lenses actually they are a boon, especially in this world जहाँ पे looks play a very big role. Yes. है ना? Regular usage of contacts is good if you maintain the proper protocol. किस तरह से contact lens लगाना है, आंखों में अगर प्रॉब्लम आती है तो क्या करना है, कॉन्टैक्ट लेंस की क्वालिटी क्या है, कब तक लगाना है, लगा के नहीं सोना है, एंड अगर ये सब चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं तो हम डेली कॉन्टैक्ट लेंस लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं। सो कॉन्टैक्ट लेंसेज का जो पावर है वो मतलब हमारी ह्यूमन जो चश्मा है उसका पावर कितनी, मतलब ऐसे भी है कि -30 कितना नंबर हो सकता है हमारी आंखों का, चश्मे का नंबर तो 0.25 से स्टार्ट होके हमने 20
18 20 अच्छा, तक हम इतना नंबर तक दे जाता है? हाँ इतने नंबर तक भी दे देते हैं। इसके ऊपर अगर होता है तो हम ऐसे पेशेंट्स में कोशिश करते हैं कि वी कैन गो फॉर सर्जरी ओके। लाइक क्लियर लेंस एक्सट्रैक्शन, क्योंकि इतना मोटा नंबर देने से बेटर होता है। सो कॉन्टैक्ट लेंसेज इस नंबर के आते हैं? कॉन्टैक्ट लेंसेज इतने मोटे नंबर के नहीं नहीं आते, आते। मोस्टली टिल 8 और समथिंग। सो 8 नंबर इज आल्सो लाइक ओके। हाँ वी हैव पेशेंट्स जिनमें 8 नंबर भी है। 7-8 नंबर वाला बहुत ज्यादा नंबर नहीं माना जाता। अच्छा, मतलब 4-5 नंबर तो आजकल बहुत ही कॉमन है। 3-4-5 इट्स वेरी इट्स कॉमन। वेरी कॉमन। 7-8 तक भी नंबर्स आर देयर। मतलब सपोज देयर आर 10 पीपल जिससे रिफ्रैक्टिव एरर है, आउट ऑफ देम 2 people might be having इतना पावर के अराउंड 40% will have around 2 power, अच्छा, है ना। 2 to 6 पावर बाकी 40% कवर करता है, तो ये पावर बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसे फैशन लेंसेज हैं, जैसे कई कलर्ड लेंसेज होते हैं, हेजल आइज कर लेती हैं, ब्लू आइज कर लेती हैं गर्ल्स, सो दे आर आल्सो फाइन समटाइम्स इफ वी वेयर like occasional wear, occasionally. it's okay. It's okay, Regular use not okay. not okay. Not okay. So ये कलर्ड लेंसेज भी आते हैं नंबर? Colored lenses नंबर भी आते हैं। then accordingly उसकी cost भी accordingly Okay. vary करती है। वेरी गुड। But ideally clear lenses with power they are best, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा chemicals नहीं यूज होते। stain यूज होता है जब भी हम colored लेते हैं, तो अच्छी कंपनीज के जो plain contact lenses हैं वो यूज करेंगे with power. What is the proper way to store the contact lenses once you're not using them? Yes, best is to use them in your keep them in your contact lens container. जब भी आप contact lens लेंगे उसके साथ आपको कंटेनर मिलता है जिसमें R and L लिखा होता है, क्योंकि दोनों आइज के Right and अलग-अलग left. पावर होते हैं। Okay, yeah. तो राइट एंड लेफ्ट के लिए अपना अच्छे से हैंड वॉश करके यू रिमूव योर कॉन्टैक्ट लेंसेज, यू पुट ऑन द सोल्यूशन, उस सोल्यूशन के अंदर उसको डालिए एंड देन उसको बंद करके आराम से स्टोर कर दीजिए। Okay. स्टोरेज के लिए भी ऐसा होता है कि उसका स्पेसिफिक पीरियड होता है कि लाइक इतनी देर तक हम स्टोर कर सकते हैं, कितनी टाइम का लेंस है, 1 मंथ का लेंस है, 6 मंथ का लेंस है या 1 ईयर का लेंस So है। उसके अकॉर्डिंग उसकी एक्सपेंस भी हो जाता है? एक्सपेंस भी होता है और डिस्कार्ड करना भी होता है। Okay. 1 मंथ का लेंस है, 1 मंथ के ऊपर डालोगे तो आपको कॉम्प्लिकेशंस देनी शुरू कर देगा, वो हार्डनिंग शुरू हो जाएगी, Okay. उसके कारण कॉर्नियल अब्रेजन्स शुरू हो जाएंगे। Right. सो इट इज बेस्ट कि जितना टाइम लिखा है उतना यूज करके Then throw उसको it. डिस्कार्ड कीजिए। We use a lot of things in our eyes: makeup, kajal, mascara, false eyelashes. How good or how bad are they? They are good for us because we look beautiful wearing them. Yes, But how bad they are for our eyes? see, whatever thing we want to do, it should be done in a proper manner. And in moderation, I guess. In moderation करना है नहीं करना, that is up to you. जब भी आपने सपोज आई मेकअप करना है, आई मेकअप के कुछ टिप्स है, लाइक जब भी आपने मेकअप करना है हैंड वॉश करके मेकअप कीजिए। आईज में अगर आपने कॉन्टेक्ट्स लगा रहे हैं, पहले आप कॉन्टेक्ट लेंस लगाएंगे, उसके बाद मेकअप करेंगे, आई का मेकअप करेंगे, एंड जब रिमूव करने पहले कॉन्टेक्ट लेंस रिमूव करेंगे और उसके बाद मेकअप को रिमूव करेंगे। Okay. ठीक है, एंड प्रॉपरली उसको स्टोर करेंगे। जब भी मेकअप करना है, ब्रशेस जो आपके हैं वो क्लीन होने चाहिए, स्पेशली जो लिड के लिए, आई के लिए ब्रशेस यूज करते हैं। काजल जो अप्लाई करना है दैट इज अ बिग थिंग। हम एक वाटर टाइटिंग करते हैं, ये जो अंदर वाली लाइन है ना उसको वाटर लाइन के अंदर, वाटर लाइन के ऊपर वो काजल भरते हैं, वाटर टाइटिंग बोलते हैं। सी ऑन एंड ऑफ इट्स ओके, डेली यूज करेंगे तो यहाँ ग्लैंड्स पड़े होते हैं जो प्लग हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, ड्राइनेस कॉज करते हैं, घुमावनी हो सकती है। सो रेगुलर यूजेज इज नॉट ओके। आपने लगाना ही है तो लाइक पुट इट आउटसाइड द वाटर लाइन। So when we put kajal, we do like this and then we put kajal. वाटर लाइन में अप्लाई करना ठीक नहीं है, तो outside करो। Yes, outside the water line. And then coming to shadows अप्लाई करनी है। सबसे पहले जो भी मेकअप आपने यूज करना है, यू शुड बी अवेयर कि ऐसा नहीं है कि कोई सस्ता सा मेकअप यूज किया है। क्वालिटी का, आई ग्रेड का अच्छा मेकअप होगा तो आपको कभी भी वो साइड इफेक्ट्स नहीं देगा, स्किन को खराब नहीं करेगा, आईज को खराब नहीं करेगा। एंड सिमिलर is goes for liners and the for false kajals. eyelashes also. False eyelashes are okay, but permanent eyelashes which people get done, no, they are like not okay.
बिकॉज दे उनमें ना ग्रोथ होने लग जाती है ऑर्गेनिजम्स की, जो परमानेंट लैशेस लगाते हैं ना, तो उनकी जगह पे फॉल्स आईलैशेस लगाओ, वंस इन अ वाइल लगाओ, एंड प्रॉपर्ली क्लीन करो, एंड You're I'm good a to pro go. makeup girl. Yeah. every girl loves makeup, I Yes. guess. So makeup is okay, but for me, makeup should be done so In that a proper hygienic condition Yes. way. yes, Clean, get your brushes clean. yes, हम जैसे मेकअप के भी brushes we say that we should Yes. wash them. yes, ताकि हाँ. वो acne ना हो and all growth ना हो, and when suppose हम shadows use करते हैं, try to use के glitters वगैरह जो होते हैं वो ना कम हो, minimum हो, क्योंकि glitters जो है The particles can go inside the हाँ, eyes. they can go inside the eye and वो irritation cause करते हैं। कई बार वो आँख के अंदर वाली साइड में ऐसे छुप जाते हैं Right, right. कि कॉर्निया के ऊपर रब कर करके erosions भी कर देते हैं। So just be careful for that. जैसे हम घर में बच्चों की हाइट चेक कर लेते हैं very easily with the scale. क्या हम आईज भी बच्चों की घर में चेक कर सकते हैं, या छोटे बच्चों की आईज, the ones who are not able to read, तो पिक्टोरल ग्राफ्स होते हैं, चार्ट्स होते हैं? डेफिनेटली पिक्टोरल ग्राफ्स एंड आते हैं, चार्ट्स आते हैं, उनसे हम कर सकते हैं, बट एग्जैक्ट टेस्ट के लिए डेफिनेटली हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हमें बच्चे को कहना चाहिए एक आंख कवर करके वो पिक्टोरल ग्राफ्स और जितने डिस्टेंस के ऊपर उसके ऊपर लिखा हुआ है वो पढ़ के दिखाए, बताए कि उसमें क्या बना हुआ है। अगर रफली वो बता रहा है तो मींस रफली इट इज ओके। अगर लगता है कि नहीं इट इज नॉट राइट, देन डेफिनेटली आईज के लिए डॉक्टर को चेक करवाना। बेसिकली दैट इज जस्ट अ स्क्रीनिंग, राइट, है ना, for the parent to know that your child needs the appointment of the doctor. Yes, yeah. So there is a 20-20-20 rule that after 20 minutes of watching your screen you have to look 20 feet दूर कोई भी object for 20 seconds. Correct me if I am wrong. You are right, definitely right. It is basically an eye mantra. You know, screen हमारी लाइफ के लिए जरूरी है, हमारे प्रोफेशन के लिए जरूरी है। डेफिनेटली इट इज एन अनअवॉइडेबल थिंग जो हमें चाहिए भी, बट उसके साइड इफेक्ट्स को कैसे बचाया जा सके, दैट इज अ मंत्र व्हिच वी यूज 20-20-20। हर 20 मिनट के बाद 20 फीट दूर देखिए, 20 सेकंड का गैप दीजिए एंड ब्लिंक योर आईज and you are good enough. When we blink our eyes, I guess the tears in our eyes, they protect our cornea. Yeah, they replenish. Basically ना क्या होता है कि जब भी हम स्क्रीन देखते हैं, नॉर्मल जो ब्लिंकिंग रेट होता है वो 1/3 हो जाता है। उससे क्या होता है, ड्राइनेस बढ़ती है। हमारा जो टीयर नॉर्मली क्या होता है, हमारा पंप होता है यहाँ पे, अब आई ब्लिंक करेंगे अपने आप वो पंप एक्ट करेगा, खुलेगा और क्लियर हो जाएगी हमारी आई। हमारे जैसे वो वाइपर होते हैं, यस, उस तरह चल के और काम ठीक हो जाएगा। राइट। स्क्रीन यूज करने से वो वाइपिंग मैकेनिज्म जो है और एंड बम्पिंग मैकेनिज्म वो कम हो जाता है, स्लो हो जाता है, एंड दैट गिव्स राइज टू द साइड इफेक्ट्स ऑफ आवर स्क्रीन। राइट, ठीक है, दैट इज कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम इट इज ऑल्सो अ बिग बीमारी, डिजीज बन गया आजकल के लिए। तो उसका यही मंत्र है 20-20-20 रूल, एंड कीप वन ल्यूब्रिकेंट जो आंख में टीयर ड्रॉप्स है हैंडी रखो। नेम एनी आई ड्रॉप which is good for suitable for everybody. ग्रीन कलर का रिफ्रेश टीयर्स। हाँ, वो ब्रांड है वो। अच्छा। तो बेसिकली कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज बीच में ड्रग होता है, किसी अच्छी कंपनी का लीजिए एंड ये रेगुलरली यूज कीजिए, विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन ऑन द टेबल ओवर द काउंटर मिल जाता है, और कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी यूज कर सकता है। एंड अब वन इम्पोर्टेंट थिंग, आपने जब ड्रॉप ले लिया उसको ओपन करने के बाद आफ्टर 1 month you have to throw it. Okay, that was यूज किया नहीं किया, 2 बार हम डाला, रख लेते हैं, राइट? नो, अच्छा। बिकॉज जो उसके अंदर मीडियम होता है वो एक ग्रोथ का, पनपने का, ऑर्गेनिजम्स को पनपने का एक जरिया बन जाता है। तो वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स, कोई बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं, फंगस ग्रो कर सकते हैं, तो हम इन्फेक्शन बाहर से ही डाल रहे हैं अपनी आईज में। तो वो आफ्टर 1 month आपको पता नहीं कि आप ड्रॉप डाल रहे हैं, कोई इन्फेक्शन डाल रहे हैं, खुद ही डाल रहे हैं। तो 1 महीने के बाद जो भी आपके पास ड्रॉप है उसको आपने फेंकना ही फेंकना है, अनलेस एंड अनटिल डॉक्टर ने आपको कहा है कि ये 2 महीने चलने वाला ड्रॉप है। कुछ ड्रॉप्स होते हैं फ्रिज में रख लो, फ्यू ड्रॉप्स, जैसे ग्लूकोमा ड्रॉप्स होते हैं, वो कुछ ड्रॉप्स हैं जो कहते हैं कि हम 60 डेज चलते हैं। Otherwise, mostly you can refrigerate those drops, or yes, you can keep them refrigerate these drops. Freezer में नहीं, fridge में, in the fridge. When I was small, I went to a doctor, eye specialist. So he suggested me that
पेंसिल लेके, so you have to do like this, then don't move your, मतलब अपना head नहीं हिला के, eyes towards right side, left side, ऐसे करो, that this is a very good exercise of your muscles. Yes, even in yoga, in our own culture, ocular muscle exercises, they are very known. इससे क्या होता है कि जो हमारे muscles हैं, there are 6 extraocular muscles जो eyes की movement करते हैं, Okay. उनको ये strengthen करते हैं. तो उनकी स्ट्रेंथ से भी हमारे नंबर के ऊपर ऐसे नंबर के ऊपर एज सच कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ता, बट इसके साथ क्या होता है कि आईज की बैलेंसिंग अच्छी हो जाती है. कई बार बैलेंसिंग अच्छी नहीं होती, मसल्स एक दूसरे के साथ अच्छा कोऑपरेट नहीं कर रहे, तो भी स्ट्रेन और हेडेक्स हो सकते हैं इन स्पाइट ऑफ नो नंबर. ओके, एंड दैट कैन आल्सो कॉज स्क्विंट्स भी इसी के साथ रिलेटेड है. तो एक्स्ट्राओकुलर मसल्स की जो एक्सरसाइजेस हैं, दे आर गुड, बट दे आर नॉट रिलेटेड टू योर ग्लासेस पावर. अच्छा, वो जरूर करनी है. कुछ में कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी होती है, मींस दोनों आंखें अंदर को नहीं आ पाती, उनके लिए हम पेंसिल पुशअप्स बोलते हैं. कुछ स्क्विंट्स होते हैं, मतलब जो टेढ़ापन होता है, उसमें भी कुछ पेशेंट्स को हम पेंसिल पुशअप्स के लिए बोलते हैं. ओके, तो डेफिनेटली दे हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग योर मसल्स को स्ट्रांग करते हैं, बट नंबर में बहुत ज्यादा कुछ सिग्निफिकेंट रोल नहीं है. स्क्रीन टाइम इन चिल्ड्रन, व्हिच इज, मेरे को लगता है आजकल के पेरेंट्स के लिए ये वाला टॉपिक इज अटमोस्ट इम्पोर्टेंट. कितना स्क्रीन टाइम होना चाहिए बच्चों के लिए? क्या एज से तुम्हें बच्चों को, मतलब उससे पहले वी शुड नॉट गिव द टैबलेट्स एंड द फोन्स टू द चिल्ड्रन, एंड टिल व्हाट एज हम स्क्रीन टाइम इज, मतलब ओके? सो इट इज अ वेरी, आई गेस it is a question which is for like every parent. They are very eager to know the answer about for it. This is a very common question जो हमें ओपीडी में पूछा जाता है बहुत ऑफन. पेरेंट्स आते हैं बच्चे के एग्जामिनेशन के लिए, मैम इसको बोला कि मोबाइल कम करेगा. मैंने पूछा कितना मोबाइल देखा है, 1 आधा घंटा. मैंने पूरा दिन फोन देखा है. तब बेसिकली जो स्क्रीन है ये एक महामारी बन गया है. Yes. It is an epidemic now. Yes. I have seen कि बच्चा पैदा हुआ नहीं, 6 महीने साल का हुआ नहीं, और पेरेंट्स ने जी टैब लगा दिया, फोन चला दिए, टीवी चला दिए, एंड बच्चे उसको एडिक्ट हो गए. एंड लेटर ऑन जब वो एडिक्ट हो जाते हैं और उनके दिक्कत आती है, देन दे आर लाइक कि मैम अब the parents only are the ones who crib. Exactly, we ourselves, हम खुद ही इस चीज के we have given the phones at the first, and now we are cribbing that why the child is watching so much of exactly it. अब वो एडिक्ट हो गए और उसके लिए अब हम चाहते हैं कि कोई सोल्यूशन. थिंग इज वी ourselves are the solution. हम इस चीज के सोल्यूशन हैं. Ideally by 2 years of age there should be zero screen. 2 साल तक कोई स्क्रीन नहीं होना चाहिए. No screen means no TV also. No screen, no TV, nothing. ये जो आई की डेवलपमेंट है उसको हिंडर करता है. टैब्स और फोन तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब बच्चा नजदीक के लिए ऐसे जब हम देखेंगे, नजदीक को देखेंगे, हमारा नियर फोकस ज्यादा यूज करेंगे. What I heard somewhere कि our human eye is developed for looking far, मतलब distant objects rather than looking at the close ones. नहीं, डेवलप तो दोनों तरह से करेंगे, बट जब हम नजदीक के लिए ज्यादा फोकस करेंगे तो हमारे जो मसल्स हैं वो ज्यादा एक्ट करेंगे. एंड कुछ स्टडीज में ये भी पाया गया है कि अगर इनकेस स्क्रीन टाइम ज्यादा होता है तो आई बॉल जो है वो उसका साइज मोर देन नॉर्मल बढ़ने लग जाता है. जिसके कारण क्या होता है कि हमारा चश्मे का नंबर, स्पेशली माइनस नंबर, बढ़ना शुरू हो जाता है. Minus means do. Minus means minus mostly myopes. Mostly myopes होते हैं बच्चे जो होते हैं, वो बढ़ना शुरू हो जाता है. So इसीलिए till 2 years of age no screen. प्री स्कूल वाली एज में आप स्क्रीन दे सकते हैं. ट्राई दैट, मोबाइल और लैपटॉप वगैरह ना दिया जाए. देना है तो टीवी देखिए, ताकि बहुत ज्यादा नियर को फोकस ना करें और माइनस नंबर जो है, जो इंड्यूस होता है इनके कारण, वो ना. एंड जैसे जैसे बड़े होते हैं, मैक्सिमम देखो, अगर कोई साइकोलॉजिस्ट से पूछे आप, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, व्हाट ही विल से कि मैक्सिमम ऑफ स्क्रीन टाइम अलाउड पर डे इज हाफ एन आवर. हाफ एन आवर से ऊपर अगर जाता है तो वो बच्चे की साइकोलॉजी के ऊपर भी इफेक्ट करने लग जाता है. वो एडिक्ट बन जाता है, इरिटेबल बिहेवियर होने लग जाता है. एंड वी फाइंड कि बच्चे जो हैं वो जैसे ड्रग डिपेंडेंसी होती है, स्क्रीन डिपेंडेंसी हो जाती है ना. तो आइडियली इट शुड बी
हार्डली हाफ एन आवर टू 1 आवर, इससे ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं नहीं देना देना चाहिए। चाहिए। एंड आफ्टर कोविड तो ये स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है, बिल्कुल। क्योंकि स्कूल्स में अब भी, इवन रेगुलर स्कूल्स के बाद भी, द होमवर्क्स एंड एवरीथिंग, ऑल द असाइनमेंट्स, सब कुछ इट कम्स टैब ऑन दी पे, फोन्स। हाँ, टैब तो पे, बच्चे दे फोन पे, गूगल इट, हाँ, तो दे by default they have to search something or the other जिससे for their assignment only on the phone. हाँ, So what I have heard that screens, they emit blue light. ब्लू लाइट डेफिनेटली एमिट होती है, बट वो ब्लू लाइट कितनी आइज के ऊपर हार्मफुल होती है ये अभी तक स्टडीज ने ना पूरा कंफर्म नहीं किया है। आर दे एक्चुअली सो हार्मफुल और नॉट? सम स्टडीज हैव शोन कि ब्लू लाइट से हमारा स्लीप पैटर्न बहुत इफेक्ट होता है, उससे हमारा जो आई का ग्रोथ है उसके ऊपर भी फर्क पड़ता है, चश्मे के नंबर भी फर्क पड़ता है, बट दे आर नॉट कंफर्मेटरी रिपोर्ट्स। बट आइडियली अगर मैक्सिमम है तो हमें ब्लू लाइट अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज ब्लू लाइट फिल्टर्स आते हैं, एप्स ही आते हैं, वो फोन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ब्लू लाइट के अंदर आई गेस कुछ चीजें होती है which makes us wakeful। सुबह मेलाटोनिन हार्मोन इज देयर, जो रात को अगर हम ब्लू लाइट देखेंगे तो वो हमारा सर्केडियन रिदम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। एग्जैक्टली, यू आर राइट। या तो दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग कि उससे जो हमारा स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ जाता है, सर्केडियन रिदम खराब हो जाता है, स्लीप पैटर्न खराब हो जाता है। ये तो होता ही होता है, दीज आर फैक्ट्स। How they affect the eye, there are also some studies, but they are not confirmatory, but still we should avoid the blue light. In the night तो बिल्कुल भी हाँ, रात को तो फोन को टाटा बाय बाय बोल के डिम लाइट में, अंधेरा में, मिनिमम 2 घंटे पहले, you know, there are some inbuilt switches inside our brain, so by भगवान ने ये अंधेरा इसलिए किया है कि वो स्विच ऑफ कर देता है। हम अपनी वो स्विच जला रहे हैं, हम जबरदस्ती जला रहे हैं। यस, हम जलाते हैं, लाइटों से जलाते हैं, फोन से जलाते हैं, बट इन लॉन्ग टर्म वो हमारी हेल्थ को खराब ही करता है। हम बोलते हैं नींद नहीं आ रही, लेट्स वॉच फोन, ये नहीं पता कि वो वॉच फोन से और डिले हो रही है हमारी नींद। यस, एग्जैक्टली। या So ideally, what I always say to my parents, to my patients and even my family, कि सोने से पहले 2 घंटे पहले कोई स्क्रीन नहीं होना चाहिए, जिसके लिए हमारे घर में बहुत लड़ाई होती है, मेरे बच्चे छोड़ने को तैयार नहीं होते, बट yes, you have to do means you have to do. Yes. बंद means बंद means. So you also do it बंद? Yes. Before we should always lead with an example, yes, I guess. बंद means मेरा तो फोन देख के मेरी बेटी कह रही थी मम्मा फोन, so बंद means बंद. Yes.